Hello children, welcome back. Today we will be doing IUPAC nomenclature of alkynes. What do you mean by alkynes? Triple bond. So whenever either you have been given a formula or you have been asked to write the structural formula of any given alkyne, first thing which you have to notice is that substance is fitting up in this formula or not. For example, if I take one number of carbon number of carbon is 1, then what will be the root word for it? Meth, isn't it? One carbon is meth. Let us see if I fit one carbon in this formula, what I get. C1H2 into 1 minus 2. That means it becomes C1H, 2 ones are 2, minus 2, 0. That means no H is present. It is not hydrocarbon also. How will it form alkyne? ये तो हाइड्रोकार्बन भी नहीं है ना, क्योंकि H इसमें है ही नहीं. That means methyne is not possible. Why it is not possible? क्योंकि जब हम इस फॉर्मूला में रखते हैं मिथाइन की वैल्यू, जिसमें C की वैल्यू 1 होती है, so it does not satisfy. Because it does not satisfy, that is why methane is not possible. Now let us see if I keep value of C as 2. Then what will happen? C2H2 into 2 minus 2 is equal to C2H2. Let us see if this is possible. C, triple bond, because it is alkyne, another C. One H, another H. That means it is possible. Okay. Now because the number of carbon is 2, what will be the root word? Eth. Root word will be eth. Because it is triple bond, what suffix we have to fix? Ine. So it becomes ethyne. Here the name will be ethyne. What is the another name of ethyne? Acetylene. Okay, now suppose you have been given a compound whose name is given. Suppose it is propyne. Now how will we form propyne? 1, 2, 3 carbon. So prop, root word prop, ine. That means one triple bond is present. That triple bond you can place here also and you can place here also. Let me place it over here. Now valency of this carbon 1, 2, 3, 4. Valency of this carbon 1, 2, 3, 4. Satisfied. Valency of this carbon 1, 2, 4. 3 and 1 4. इस कार्बन का 3 and 1 4. इस कार्बन का 3 and 1 4. Understood? Now let us keep this, let us tally this with the formula. C, number of carbon 3 हो गया. C3H 3 into 2 minus 2. That means C3, 3 2s are 6. 6 minus 2, 4. C2H4. Let us see 3 and 1 4. That means this formula is correct. It has worked. According to the formula, it has worked. Now let us take another example. If number of carbon is 4, then the name will be butane. What will be the formula? C4H4 into 2 minus 2 is equal to C4H4 2 is 8. 8 minus 2, 6. तो ये फॉर्मूला से करने से क्या होता है, हमको ये पता चल जाता है इस कंपाउंड में जो एल्काइन है उसमें कितने कार्बन होने चाहिए, कितने हाइड्रोजन होने चाहिए. तो अगर हम कभी गलती से मिस भी करते हैं ना कोई वैलेंसी, अगर कोई एक्स्ट्रा H बच जाएगा तो हमें पता चलेगा, अगर H कम हो जाएगा तो भी हमें पता चलेगा. इसलिए सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला बनाना चाहिए.
अभी नंबर ऑफ कार्बन कितने चाहिए आपको? 4 चाहिए। 1 2 3 4, क्योंकि ब्यूटाइन है, रूट वर्ड 4 कार्बन बता रहा है। अब आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो आप ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा दीजिए फर्स्ट पोजीशन पे, या आप ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा दीजिए सेकंड पोजीशन पे, क्योंकि अगर आप यहाँ लगाएंगे तो वापस से फर्स्ट हो जाएगा। तो लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन फर्स्ट। 1 2 3 4 इसके बैलेंस है, इसके 1 2 बैलेंस है, एक H2 डालना है, यहाँ पे HCH3, यहाँ पे 1 है CH3। दिस इज सेटिस्फाइड 1 2 3 4, दिस इज ऑल्सो सेटिस्फाइड 1 2 3 4, हियर CH3। ओके, now see it is satisfying the formula C4 1 2 3 4 H6, so 3 4 5 and 1 6, 3 and 3 6। तो इससे हमें डबल टैली हो जाता है। अगर आप फॉर्मूला में डाल के उसका वैल्यू निकाल लेंगे ना तो डबल टैली हो जाएगा, आपकी गलती कभी भी नहीं होगी। अब इसको नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे? जहाँ से हमारे डबल बॉन्ड को मिनिमम पॉसिबल नंबर मिले, कार्बन का मिनिमम पॉसिबल नंबर मिले, वहाँ से हम डबल बॉन्ड स्टार्ट करेंगे। तो कहाँ से करना चाहिए? यहाँ से 1 2 3 4। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड? रूट वर्ड क्या है? रूट वर्ड है ब्यूट। ब्यूट पे क्या ग्रुप लगा है? आयन। हाँ, कहाँ पे लगा है? 1 पे, तो हम इसको लिखेंगे नॉर्मल ब्यूटाइन। यहाँ पे देखो, किधर से भी नंबरिंग करो 1 2 3 4, इधर से करोगे तो भी 1 2 3 4। ओके, दोनों तरफ से आपको 2 ही मिल रहा है, तो अब नाम क्या दोगे? रूट वर्ड क्या है? ब्यूट। कहाँ पे क्या कंपाउंड है? फंक्शनल ग्रुप क्या है? आयन। किस पोजीशन पे है? 2। इस तरह से भी लिख सकते हैं, या 2 ब्यूटाइन, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, 2 ब्यूटाइन, ब्यूट 2 आयन और ब्यूट 2 ब्यूटाइन। अच्छा, अभी हम पेंटेन का लेते हैं, 5 कार्बन कंपाउंड। 5 कार्बन कंपाउंड पेंटाइन। सो C5H5 into 2 minus 2 C5H8। Now you have understood how I am calculating. 5 2s are 10, minus 2 8. So 1 2 3 4 5, and anywhere triple bond. Okay, here I am putting 1 2 3 4 5. I can put it over here now. Okay, now see, if I put it over here, it means the same. Another एक और कंपाउंड अगर बना के मैं यहाँ पे लगाऊँ तो सेम है, क्योंकि नंबरिंग इधर से शुरू करेंगे तो सेकंड कार्बन हो जाएगा। अगर ये वाला बॉन्ड यहाँ लगा दूँ तो भी एक ही बात है, क्योंकि नंबरिंग फिर हम इधर से शुरू करेंगे। ओके, अभी लेट अस सेटिस्फाई हाइड्रोजन। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 and 1 2 3 4। Here CH3 4, इसका 4, CH2 CH3। देखते हैं फॉर्मूला से 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8 9। पकड़ा गया गलती? कहाँ गलती है बताइए? 9 कैसे हुआ? 3 4 5 6 7 8 है कुछ गलती? नहीं, काउंटिंग में। Then what we will be doing? Next compound 6, hexane. That means C6 H6 into 2 minus 2, C6 H6 2s are 12, minus 2 10. So 1 2 3 4 5 6. Another 1 2 3 4 5 6। बेटा इसका नाम लिखना रह गया। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 है ना, तो रूट वर्ड क्या होगा? पेंट। किस जगह पे एक डबल बॉन्ड लगा है? 1 पे। ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी,
और क्या है वो? ट्रिपल बॉन्ड, पेंटाइन। यहाँ पे रूट वर्ड 1 2 3 4 5, तो पेंट, ठीक है। अभी हमने बोला ना नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। अगर हम नंबरिंग इधर से करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये थर्ड पोजीशन पे आ गया डबल बॉन्ड, विच इज़ रॉन्ग, विच यू कैन नॉट टेक। आपको मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड लेना है। जो भी फंक्शनल ग्रुप है वो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन पे लेना है। तो यहाँ से ये सेकंड नंबर पे आ रहा है, दैट इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे पेंट 2 क्या है? ट्रिपल बॉन्ड, उसका सफिक्स क्या है? आइन। ओके, लेट अस टेक दिस वन। 1 2 3 4 5 6। अभी इसमें आपके पास काफ़ी चॉइस मिलेगी। यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड, फिर 1 2 3 4 5 6। एक और चॉइस मिली हमें, हम यहाँ लगा सकते हैं। ये और ये डिफरेंट है, कैसे देखते हैं। CH, this is satisfied, this is CH2, this is CH2, this is CH2, this is CH3, this is CH3, this is satisfied, this is also satisfied. Now this is CH2, CH2, CH3, CH3, CH2, this is satisfied, this is also satisfied, this is CH2, this is CH3. पहले हाइड्रोजन काउंट कर लो, 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कार्बन हाइड्रोजन इज सेटिस्फाइड। अभी नंबरिंग की बारी, कैसे करेंगे? अपना फंक्शनल ग्रुप शुड बी एट द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन। सो इफ आई स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम हियर, इट इज रॉन्ग. So I will start numbering from here. 1 2 3 4 5 6. 6 हो गया। रूट वर्ड क्या हो गया? हेक्स, है ना। अच्छा, उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है? ट्रिपल बॉन्ड का, मतलब आइन। किस पोजीशन पे लगा है? 1 हेक्स आइन। यहाँ पे अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 फोर्थ कार्बन पे आएगा ट्रिपल बॉन्ड, है ना। 1 2 3 फोर्थ कार्बन पे आएगा। इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 सेकेंड कार्बन पे आ गया। सो दिस इज करेक्ट। नाम क्या होगा? 6 कार्बन की चेन है तो हेक्स, ट्रिपल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या होगा? आइन। किस पोजीशन पे है? सेकेंड पोजीशन। यहाँ पे देखो, अब इसमें एक चीज़ है, आप किधर से भी इसकी नंबरिंग करो बराबर है। कैसे? देखिए, 1 2 3 4 5 6। ऑपोजिट डायरेक्शन में करते हैं। 1 2 3 4 5 6। किसी भी तरह से करिए, थर्ड पे ही आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, तो इसकी नाम कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6। रूट वर्ड क्या हो गया? हेक्स। ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए आइन। कहाँ पे है आइन? थर्ड पोजीशन में, तो 3 आइन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। लाइक वाइज हम और भी करते रहते हैं, और भी जहाँ तक आप चाहो इसकी कैटिनेशन सीरीज, होमोलोगस सीरीज आप बना सकते हो। अब देखो, यहाँ पे और यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा। इसका और इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, हमने यहाँ पे से टेली कर लिया अपने जनरल फार्मूला से, लेकिन नाम अलग है, स्ट्रक्चर अलग है। ऐसे कंपाउंड्स जिनके स्ट्रक्चर अलग होते हैं लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, उनको बोलते हैं आइसोमर्स। वेरी प्रिसाइजली स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो ये दोनों आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। इसी तरह से ये दोनों आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। इसके 3 आइसोमर बने। ओके, so only structural isomer you need to understand in 10th standard. Rest is not required for you for 10th standard basically. आगे 11th में तो आपको सब की ज़रूरत पड़ेगी, तो बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो we will be taking up on halogens. Till then, take care, stay safe, God bless.